Hello student, I am your geography teacher Vivek from California Public School. Dear students, this is your new chapter. We start today here. Chapter 6, Asia, the largest continent, part 1. And 7th chapter, part 2 of Asia continent. Okay, so we discuss here chapter 6, Asia, the largest continent, part 1. Okay, and in this full chapter we discuss location and physical feature of Asia. Okay, and today in this video we discuss the topic location and extent of Asia. Okay, so first we discuss here introduction part. Asia is not only the largest but also the most populous continent in the world. पूरे वर्ल्ड में देयर टोटल 7 कॉन्टिनेंट और दैट द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट जो है आपका जैसी है दिस योर मैप एंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है वो आपका एशिया कॉन्टिनेंट है. ओके, एंड नॉट ओनली इट्स लार्जेस्ट बट मोस्ट पॉपुलस. पूरे वर्ल्ड में पॉपुलेशन जो है वो सबसे ज़्यादा भी इसी कॉन्टिनेंट में लाई करती है. ओके, देयर टोटल 7 कॉन्टिनेंट: एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, यूरोप, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका और अंटार्कटिका. टोटल 7 continents there. Okay, so now Asia is the largest continent of the Asia is not only largest but also the most populous continent in the world. It has a great variation in its relief features, climate conditions, natural vegetation, civilization and culture. Means आपको एक लार्ज कंटेंट होने की वजह से यहाँ पर डिफरेंट टाइप ऑफ लैंड फीचर्स आर देयर, डिफरेंट टाइप ऑफ कल्चर्स, डिफरेंट टाइप ऑफ रिलीजन्स. ठीक है, या फिर वी कैन से डिफरेंट टाइप ऑफ नेचुरल वेजिटेशंस, डिफरेंट टाइप ऑफ क्लाइमेट सिचुएशन यहाँ देखने को मिलती है. ओके, सो एशिया लाई मेनली इन द नदर्न एंड ईस्टर्न हेमिस्फीयर. जस्ट सी केयरफुली, दिस इक्वेटर, upside the equator in northern hemisphere and downward side southern hemisphere. Okay, and this is your 0 degree, this line, that side eastern hemisphere, that side western hemisphere. Okay, so means Asia totally lie in the northern hemisphere or eastern hemisphere. ठीक है, दिस इक्वेटर, इक्वेटर के अपसाइड आपका नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और 0 डिग्री के अदर साइड ईस्टर्न हेमिस्फीयर. तो टोटली जो एशिया है लाई इन द नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न हेमिस्फीयर. ओके, so now location and extent. So we discuss here इसकी लोकेशन और एक्सटेंट. ओके, कि कहाँ पर ये लाई कर रहा है, उसके सराउंडिंग एरिया में क्या है और कितने लैटिट्यूड से लॉन्गिट्यूड तक ये एक्सटेंट है. ओके, सो फर्स्टली वी डिस्कस एक्सटेंट पार्ट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट. यहाँ से 2 मार्क्स का क्वेश्चन एग्जाम में आता है. बट इज द लैटिट्यूडनल एंड लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ एशिया कॉन्टिनेंट. ओके, सो एशिया एक्सटेंड फ्रॉम अबाउट 10 डिग्री साउथ टू अबाउट 80 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड. मीन्स आपका जो एशिया जो है, दिस योर कलर हियर, दिस आर 10 डिग्री साउथ टू अबाउट 80 डिग्री नॉर्थ, बिकॉज 0 डिग्री से डाउन साइड साउथ, अप साइड नॉर्थ. ओके, तो इट्स लोकेशन लैटिट्यूडनल एक्सटेंट 10 डिग्री साउथ टू 80 डिग्री नॉर्थ. ओके, इफ वी टॉक अबाउट longitudinal extent, so longitudinal extent is about here 25 degree east, because 0 से इधर साइड है ईस्ट टू 170 डिग्री. देखो आपका 180 ईस्ट है, आफ्टर आपका इधर साइड है, तो आपका एशिया यहाँ तक है बच्चे. तो यहाँ पर आपका 170 डिग्री वेस्ट आपका जो एशिया कॉन्टिनेंट है हियर, एंड इज द फर्दर पार्ट इसका यहाँ पर भी है. ओके, सो इट लाई ऑन द 25 डिग्री ईस्ट टू 170 डिग्री वेस्ट. Okay, it is the latitudinal and longitudinal extent of Asia. Okay, so if we talk about latitudinal extent, so 10 degree south to 80 degree north, or longitudinal extent to 25 degree east to 170 degree west longitudes. Okay, this is your extent, latitudinal or longitudinal extent of Asia continent. Okay, so now we discuss here further part. The mainland mass of Asia and Europe is called Eurasia. So this is your Europe or this is Asia, तो combinedly we call Eurasia. Okay, so combined नाम दिए है Eurasia, एशिया और यूरोप को. ओके,
these are only two continent जो आपस में मीट कर रहे हैं, बाकी अदर जो है सेपरेट पार्ट है. क्लियर? सो combinedly be called Europe or Asia, combinedly be called Eurasia. Okay, Eurasia. The main land mass of Asia and Europe is called Eurasia. So Asia is surrounded by Arctic Ocean in the north, the Pacific Ocean in the east, and the Indian Ocean in the south. Okay, and towards the west, the Ural Mountain and Caspian Sea separate Asia from Europe. Okay, so we understood this point with the help of map. Just see, we discuss here location. So in the north, Arctic Ocean is there. In the south, Indian Oceans. In the east, North Pacific Oceans. And in the west, here हमारा एक माउंटेन है, इसका नाम है यूरल माउंटेन. ठीक है, ये यूरल माउंटेन जो है सेपरेट कर रहा है यूरोप को एशिया से. ओके, एंड वन मोर हियर सी, कैस्पियन सी. तो ये जो बॉर्डर बॉडी दिख रही है आपको, ये कैस्पियन सी है. तो ये कैस्पियन सी भी सेपरेट कर रहा है एशिया को यूरोप से. क्लियर? इट्स द बॉर्डर ऑफ यूरोप एंड एशिया. ओके, सो दिस इज यूरल माउंटेन एंड कैस्पियन सी. ओके, ये आपको सेपरेट कर रहा है यूरोप को एशिया से. ओके, तो लोकेशन इन द नॉर्थ साइड आर्कटिक ओशन, इन द साउथ इंडियन ओशंस, इन द ईस्ट पैसिफिक ओशंस, एंड इन द वेस्ट the Ural Mountain and Caspian Sea separate the Asia from Europe. Okay, and north east the Bering Strait. अब जो देखो कीप इन द माइंड, नॉर्थ और ईस्ट इन दोनों के बीच में यहाँ पे बॉर्डर बॉडी आपको दिख रही है. वन साइड आपको देखो यहाँ पर नॉर्थ अमेरिका है. जब अर्थ को हम कंबाइन नहीं करेंगे तो दिस पॉइंट और दिस पॉइंट आपस में मीट कर जाएंगे बच्चे. ओके, तो ये आपका नॉर्थ अमेरिका है, एंड इन बिटवीन एक स्मॉल बॉर्डर बॉडी दिख रही है, ये आपका रशिया है. ओके, इन बीच में बिटवीन क्या आपका एक स्मॉल बॉर्डर बॉडी है. यहाँ पे जो सी है उसका नाम है बेरिंग स्ट्रेट, बेरिंग सी, BERING, बेरिंग सी. ओके, और एक वर्ड यूज किया है बेरिंग स्ट्रेट. दिस इज स्ट्रेट. स्ट्रेट मींस होता है इट इज अ नैरो बॉर्डर बॉडी दैट जॉइन द टू लार्ज बॉर्डर बॉडी और सेपरेट द टू लार्ज लैंड मास. उसको बोलते हैं स्ट्रेट. स्ट्रेट में इट इज अ नैरो बॉर्डर बॉडी. एक नैरो बॉर्डर बॉडी जो ज्वाइन करिए टू लार्ज बॉर्डर बॉडी, आर्कटिक ओशन और पैसिफिक ओशन. तो लार्ज बॉर्डर बॉडी को आपस में ज्वाइन करिए और सेपरेट कर रही है टू लार्ज लैंड मास को, नॉर्थ अमेरिका और एशिया को ये सेपरेट कर रही है. इसको तो स्ट्रेट, तो ये आपकी बेरिंग स्ट्रेट है. सो द नॉर्थ ईस्ट द बेरिंग स्ट्रेट इज बिटवीन एशिया एंड नॉर्थ अमेरिका. तो एशिया और नॉर्थ अमेरिका के बीच में बेरिंग स्ट्रेट है. और इन द साउथ वेस्ट, तो साउथ वेस्ट का है दिस वन, साउथ और वेस्ट दिस पॉइंट. तो यहाँ पर आपकी स्वेज कैनाल है. आपको जो बॉर्डर बॉडी दिख रही है ये स्वेज कैनाल है जो कि सेपरेट करी एशिया को अफ्रीका से. ओके, सो इन द साउथ वेस्ट द स्वेज कैनाल सेपरेट इट फ्रॉम अफ्रीका. तो एशिया कॉन्टिनेंट को अफ्रीका सेपरेट करिए स्वेज कैनाल. ओके, एंड एशिया हैज बीन द बर्थ प्लेस ऑफ मैनी एंशियंट सिविलाइजेशन. देखो एशिया ऐसा प्लेस है, बर्थ प्लेस है जिसमें बहुत सारी सिविलाइजेशन है, लाइक इंडस वैली, चाइनीज एंड मेसोपोटामियन civilization. Okay, so most of the religion in the world have actually originate and developed in Asia. बहुत सारे हमारे religions हैं और cultures जो हैं वो actually originate कहाँ हुए? In Asia continent में. Okay, तो आपसे क्वेश्चन पुट हुआ है, find out the name of any 5 such religion. तो ऐसे कौन से religion है जो कि 5 नेम बताने? हिंदुज्म, बुद्धिज्म, सिखिज्म, जैनिज्म और one more that is called Islam. Islam is also originate in Asia continent. Okay, so this will be discussed here. So find out name the Hinduism, Buddhism, Sikhism, Jainism or Islam. Okay, so we discuss here latitudinal or longitudinal extent. Okay, and introduction part. So in the introduction part में Asia is not only largest but most populous continent also, ठीक है, in the world, and it has great variations in the relief features, climate, natural vegetations, civilizations, cultures. Okay, and it lie in the northern and eastern hemisphere. Okay, this one. And after we discuss latitudinal or longitudinal extent, so it lie latitudinal extent is 10 degrees south to 80 degree north, and longitudinal extent 25 degree east to 170 degree west. Okay, after we discuss its surrounding area, so in the north Arctic Oceans, in the south Indian Oceans, in the east
Pacific Oceans on the west, Ural Mountain and Caspian Sea separate Europe from the Asia. Okay, and north east here Bering Strait, those separate the separate करिए एशिया एंड नॉर्थ अमेरिका को. ओके, एंड साउथ वेस्ट साइड इज स्वेज कैनाल जो कि सेपरेट करिए अफ्रीका और एशिया को. ओके, आफ्टर दैट वी डिस्कस कि एशिया कॉन्टिनेंट जो है इज द बर्थ प्लेस ऑफ एंशिएंट सिविलाइजेशन. तो कौन सी एंशिएंट हमारी सिविलाइजेशन थी? सच एज इंडस वैली, चाइनीज, मेसोपोटामियन. ओके, civilizations. So most of the religions also originate in the Asia continent, like Hinduism, Buddhism, Sikhism, Jainism, Islam. So many are there. Okay, those are originate in Asia continent. Okay, so now we discuss here next point, political divisions. So Asia has about 50 independent nations which have been divided into groups. कि पूरे एशिया में आपके 50 इंडिपेंडेंट नेशंस है. ओके, उनको डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड किए. जस्ट सी हियर, दिस योर टेबल गिवन इन योर बुक. सो डिफरेंट ग्रुप्स मींस लाइक ईस्टर्न एशिया, नॉर्थ एशिया, सेंट्रल एशिया, साउथ ईस्ट एशिया, साउथ सेंट्रल एशिया एंड वेस्टर्न एशिया. तो पूरी कंट्रीज को आपको यहाँ पर डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड किया, लाइक ईस्टर्न एशिया, नॉर्थ एशिया, सेंट्रल एशिया, साउथ ईस्ट एशिया एंड साउथ ईस्टर्न एशिया और वेस्टर्न एशिया में. क्लियर टू ऑल? ओके, सो नाउ दिस इज योर ग्रुप्स जो कि डिफरेंट पार्ट में हम इसको डिवाइड किया पूरे कॉन्टिनेंट को. ओके, सो नाउ वी स्टार्ट डिस्कस हियर. नेक्स्ट टॉपिक इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर. एशिया ड्यू टू इट्स वेरी लार्ज एरिया इज कॉल्ड कॉन्टिनेंट ऑफ एक्सट्रीम. ये मैक्सिमम क्वेश्चन 4 मार्क्स आता है कि वाई एशिया कॉन्टिनेंट इज कॉल्ड कॉन्टिनेंट ऑफ एक्सट्रीम. उसके पीछे बहुत सारे कॉजेज को एक्सट्रीम बोला जाता है. ओके, क्यों? मतलब फर्स्ट पॉइंट क्या है कि माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट माउंटेन पीक इन द वर्ल्ड एंड डेड सी मार्क द लोएस्ट पॉइंट ऑन द अर्थ. कि अर्थ का जो सबसे हाईएस्ट पॉइंट है वो भी एशिया में है, और जो लोएस्ट पॉइंट ऑन द अर्थ सरफेस जो रिकॉर्ड किए है वो भी एशिया कॉन्टिनेंट में है. ओके, दैट्स वी कॉल कॉन्टिनेंट ऑफ एक्सट्रीम. ठीक है, इसमें बहुत सारी वैराइटीज है. ओके, माउंट एवरेस्ट द हाईएस्ट पॉइंट और डेड सी में आपका क्या है, लोएस्ट पॉइंट ऑन द अर्थ सरफेस का भी रिकॉर्ड किए गए, वो भी एशिया कॉन्टिनेंट में. एंड सेकंड पॉइंट, बर्खोयांस्क इन एशियाटिक रशिया. एशियाटिक मींस जस्ट सी हियर, दिस योर पॉलिटिकल मैप ऑफ एशिया कॉन्टिनेंट. तो आपका क्या है, ये रशिया है. रशिया का जो हाफ पार्ट है वो यूरोप में और हाफ पार्ट क्या है, एशिया में है. ओके, एशियाटिक रशिया मींस यहाँ बात हो रही है जो उस पोर्शन की जो एशिया कॉन्टिनेंट में लाई करता है. ओके, सो नाउ बर्खोयांस्क इन एशियाटिक रशिया हैज रिकॉर्डेड द लोएस्ट टेम्परेचर. ठीक है, तो सबसे लोएस्ट टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया बर्खोयांस्क, ये रशिया में है जो एशिया में लाई करता है, और यहाँ नियर अबाउट -70°C टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया. वाइल जैकोबाबाद इन पाकिस्तान, जैकोबाबाद का है पाकिस्तान में, इट इज अ पार्ट ऑफ थार डेजर्ट. ओके, तो यहाँ पर हाईएस्ट टेम्परेचर रिकॉर्ड किया है, देयर इज अ 57°C. ओके, एंड थर्ड पॉइंट, मौसिनराम प्लेस इन इंडिया रिसीव द हाईएस्ट एवरेज एनुअल रेनफॉल. पूरे वर्ल्ड में हाईएस्ट जो रेनफॉल प्लेस होती है वो कौन सा है, मौसिनराम. इज आल्सो लाई इन द एशिया कॉन्टिनेंट इन इंडिया. ओके, एंड वेयर एज अगर दूसरी तरफ देखें तो सऊदी अरेबिया डू नॉट रिसीव एनी रेनफॉल एट ऑल फॉर मेनी ईयर्स. कि सऊदी अरेबिया क्या है कि डेजर्ट एरिया है जो वहां पर रेनफॉल नहीं होती है. ओके, तो क्या है, एक साइड ऐसा प्लेस भी एशिया में कौन लाई करता है जहाँ हैवीस्ट रेनफॉल है, और दूसरा क्या है कि वर्ल्ड के जो ड्राइस्ट एरिया है वो भी एशिया में लाई करते हैं. ओके, एंड द कैस्पियन सी इज द लार्जेस्ट लेक, while Lake Baikal is the Asiatic Russia is the deepest lake in the world. Okay, so this is your Lake Baikal. ये सबसे डीपेस्ट लेक है इन एशिया में, ये पूरे वर्ल्ड की सबसे डीपेस्ट लेक है लेक बेकाल. और लार्जेस्ट जो लेक है वो कैस्पियन सी है. इट इज द लार्जेस्ट लेक ऑफ द वर्ल्ड. तो दैट मींस इन एशिया कॉन्टिनेंट में क्या है, लार्जेस्ट लेक्स भी है और डीपेस्ट लेक भी है. ओके, एंड नेचुरल वेजिटेशन vary from moisses and lichens in the north part of the Asiatic Russia to equatorial evergreen forest. कि means in full Asia continent में lichen और moisses both are very small grass. ठीक है, और इट्स ऑलवेज ऑरिजिनेट वेयर लैंड ऑलवेज कवर्ड विद स्नो. ओके, तो वहां पर जब स्नो मेल्ट होती है तो ओनली 1 या 2 मंथ के लिए ऑरिजिनेट होती है, आफ्टर दैट ये दोबारा डैमेज होती है. तो लाइकन और मॉइस वेरी स्मॉल ग्रास होती है
तो एशिया कॉन्टिनेंट तो बड़ा लार्ज एरिया है, इतनी लार्ज वैरायटी है कि आप एक स्मॉल ग्रास से लेकर एवरग्रीन फॉरेस्ट तक ट्री, ऑल द ट्री आर फाउंड इन एशिया कॉन्टिनेंट। मींस एक स्मॉल से ग्रास से लेकर एक लार्ज ट्री तक ऑल द थिंग्स उनके रेंज के बीच में जो भी प्लांट्स आ रहे हैं, जो भी वेजिटेशन आ रही है, वो सारी एशिया कॉन्टिनेंट में मिलती है। ओके, एंड आफ्टर दैट द तिब्बत प्लेट्यू कॉल्ड रूफ ऑफ द वर्ल्ड इज द हाईएस्ट प्लेट्यू इन द वर्ल्ड, वो भी आल्सो लाई इन द एशिया कॉन्टिनेंट। ओके, एंड पूरे वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट डेल्टा है वो गंगा और ब्रह्मपुत्र रिवर से जो बनता है, उसका लार्जेस्ट, उसका नाम है गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा। ओके, इसको सुंदरबन डेल्टा भी बोलते हैं। वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेल्टा है, इज आल्सो लाई इन द एशिया कॉन्टिनेंट। ओके, एंड एशिया इज द बर्थ प्लेस ऑफ जैनिज्म, हिंदुइज्म पे ऑलरेडी डिस्कस करिए कि ऑल द बर्थ ऑल द रीजन्स जिनका जो बर्थ प्लेस है वो कहाँ है, एशिया में। ओके, दैट्स व्हाई कॉल्ड एशिया continent of extreme. Okay, so here about 8-9 points is there, you can learn any 4, but point of view of your exam all the points is very important to you। तो आपने क्या करना है, सभी पॉइंट को अच्छे से लर्न करना है। ओके, सो यहाँ सारी क्या एक जीके की नॉलेज सारी है, ठीक है, इसको अच्छे से लर्न करना है। ओके, सो व्हाई वी कॉल, क्योंकि यहाँ पर क्या है, हाईएस्ट पॉइंट भी है और डीपेस्ट पॉइंट भी है। यहाँ टेम्परेचर रिकॉर्ड -70 डिग्री है, तो दूसरी साइड हाईएस्ट टेम्परेचर भी रिकॉर्ड किया गया है इन एशिया कॉन्टिनेंट में। ओके, एंड मौसिना में प्लेस ऐसा है जहाँ पर हैवी स्नोफॉल हो रही है पूरे वर्ल्ड की, और सेकंड ऐसा है कि दूसरी साइड हमारी ड्राई एरिया भी है। ओके, लाइक सऊदी अरेबिया। कैस्पियन सी लार्जेस्ट लेक और डीपेस्ट लेक आल्सो लाई इन द एशिया कॉन्टिनेंट। नेचुरल वेजिटेशन मींस ऑल द वैराइटीज ऑफ वेजिटेशन आल्सो फाउंड इन एशिया कॉन्टिनेंट। ओके, एंड सबसे हाईएस्ट प्लेट्यू तिब्बत प्लेट्यू आल्सो लाई इन द एशिया कॉन्टिनेंट। ओके, एंड लार्जेस्ट डेल्टा इज द ब्रह्मपुत्र डेल्टा या सुंदरबन डेल्टा। Okay, is also lie in the Asia continent, or different type of जो religions are also originate and develop in Asia continent. Okay, so this is a topic to be discussed here, location and extent or political division of Asia continent. Okay, thank you.